بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا حقیقی معبود پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین اور عزیز مائیں اور بہنیں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ آپ کی دعا میں بڑی تاثیر تھی، یہی وجہ ہے کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی ان کے حق میں دعا کریں، حتیٰ کہ جو غیر مسلمین تھے، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ جیسا کہ یہود آتے تھے آپ کے پاس اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ان کے حق میں روزی کی کشادگی کی دعا کریں، تو آپ مصلحت کے پیش نظر اللہ سے قریب کرنے کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کی بڑی تمنا ہوتی تھی، ان کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ نبی ان کے حق میں دعا کریں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، دفن کے وقت نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ران پر سلایا اور آپ نے ان کے حق میں ایک عظیم دعا کی، جس کو سن کر کے صحابہ کرام کہا کرتے تھے یا لیتنا کنا مکانہ، کاش ان کی جگہ ہم ہوتے۔ صحابہ کرام کو، صحابیات کو نبی کی دعا سے کتنی خوشی ملتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کریں، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی تمام خطاؤں کو جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، جو پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہیں، سب کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی ہنسی ان کو آئی کہ مارے خوشی اور ہنسی کے نبی علیہ السلام کے گود میں ان کا سر آ گیا۔ آپ نے کہا عائشہ میری دعا سے اتنی زیادہ خوشی؟ کہا کیوں نہیں، دعا کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں،
آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، قسم اللہ کی یہی دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے حق میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، امت کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنے مہربان تھے کہ ہر نماز میں آپ کے حق میں، ہمارے حق میں دعا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، نبی علیہ السلام کی دعا میں کتنی تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے قبول کرتا تھا، آپ اندازہ کیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انیس ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے، تو آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تو آپ نے دعا کی اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فیہ، کہ اے اللہ تو ان کو اولاد دے، مال دے اور اس میں برکت دے۔ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ خود کہتے ہیں قسم اللہ کی میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میری اولاد اور اولاد کی اولادیں تقریباً 100 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں سب سے مالدار ہوں، اور میری بیٹی امینا نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی صلبی اولاد میں سے 120 اولاد وفات پا چکی ہے آپ کی زندگی میں۔ اور کہتے ہیں کہ میری زمین سال میں 2 بار پھل دیتی تھی، جبکہ اسی بستی میں، اسی علاقے میں کوئی اور زمین 2 بار پھل نہیں دیتی تھی۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا تھی کہ خوب برکت ہوتی تھی۔ اور سنیں، نبی کی دعا کا اثر آج تک موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بیمار رہنے لگے۔ بعض صحابہ مکہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اشعار گنگناتے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے مدینہ کے حق میں دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ ہم سب کے دل میں مدینہ کی ایسی محبت پیدا کر دے جیسی محبت مکہ سے ہے، بلکہ مکہ سے کہیں زیادہ مدینہ کی محبت پیدا کر دے، اور مدینہ کو صحت و عافیت عطا فرما، اس میں برکت دے، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ محترم حاضرین، اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں صحابہ کرام مکہ سے کہیں زیادہ مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان مکہ سے کہیں زیادہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں، اور مدینہ کے اندر برکت ہی برکت ہے، اور مدینہ کے اندر صحت و عافیت ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں WHO نے مدینہ منورہ کو ہیلتھ سٹی قرار دیا ہے، یعنی صحت مند شہر قرار دیا ہے، اور یہی خطاب، یہی ایوارڈ سن 2019 کے اندر مدینہ منورہ کو مل چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ آج دنیا بھی اس کا اقرار اور اعتراف کر رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بتلانے کے لیے کہ نبی جب کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم سب چاہتے ہیں، سب کی تمنا ہے کہ ہم بھی نبی کی دعا حاصل کریں، نبی کے دعا کے مستحق بنیں۔ تو کیا ممکن ہے آج کے وقت میں، آج کے زمانے میں کیا نبی کی دعا مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے۔ کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو کریں، اس کو انجام دیں، آج بھی نبی کی دعا پا سکتے ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں خیر و برکت ہو سکتی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھنا، اور تہجد کی نماز کے لیے ایک دوسرے کو جگانا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، ساتھ میں بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ بیوی نہیں اٹھتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، ساتھ میں شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ شوہر نہیں اٹھتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ محترم سامعین، تو نبی کی دعا ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے اور تہجد کے لیے ایک دوسرے کو جگانے والوں کے لیے۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
इश मा शि'त फ़इन्नका मय्यितुन, जितना चाहे जिंदगी गुजार लें, जितना चाहे जी लें, बिल आखिर एक दिन वफात होगी, एक दिन मरना है। अहबिब मन शि'त फ़इन्नका मुफ़ारिकुहुन, जिससे जितना चाहे मोहब्बत कर लें, बिल आखिर एक दिन आएगा कि उससे जुदा होना है। वअमल मा शि'त फ़इन्नका मुजज़युन बिही, जितना चाहो अमल कर लो, उसका बदला मिलकर रहेगा। वालम अन्ना शरफ़ल मुमिन, और याद रखो मोमिन की शराफत इसमें है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, क़यामुल लैल का एहतमाम करे, और मोमिन की इज़्ज़त इसमें है कि वो लोगों से बेनियाजी बरते, यानी लोगों का मोहताज ना बने। और ए अल्लाह के बंदो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली कहते हैं कि लोगों तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि ये तहज्जुद की पाबंदी तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है, अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है, गुनाहों से बचने का ज़रिया है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहज्जुद पढ़ने से, रात में अल्लाह के सामने खड़े होने से जिस्मानी बीमारियां ख़त्म होती हैं। कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, और इनके इस कौल को अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है। और सामने किराम, आप बराबर सुनते रहते हैं कि हम सब का रब अज़्ज़ व जल्ला हर रात ये जो दुनियावी आसमान दिख रहा है यहाँ पर आता है। कब आता है? जब तिहाई रात का वक्त होता है, यानी फजर के अजान से पहले पहले, और अपने हाथों को फैलाता है, खुद कहता है मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूं। मेरे भाइयों, कब तक रहता है? फजर की अजान तक। तो इस वक्त दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है रात के आखिरी हिस्से में। तो अगर हो सके, मुमकिन हो सके, तो उस वक्त अल्लाह को याद करने वालों में से हो जाओ, बन जाओ। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि रात में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो भी बंदा अल्लाह से मांगे, भलाई तलब करे, अल्लाह ताला वो चीज़ उसे ज़रूर देगा। सामने किराम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रात के आखिर सहरी के वक्त दुआ करना ये तीर के मानिंद है जो कभी ख़ता नहीं करती है। इमाम अबू हाज़िम कहते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी, रंजो गम होता था, मैं मुश्किलात में होता था, तो मैं क्या करता था? रात के आखिरी हिस्से में उठता था, 2 रकात नमाज पढ़ता था, अल्लाह से दुआ करता था, और मेरी हाजत पूरी होती थी। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इनके पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं दुआ करता हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा? सहरी के वक्त, रात के आखिरी हिस्से में दुआ का एहतमाम करो, क्योंकि उस वक्त रहमत का नुज़ूल होता है, कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं। उस आदमी ने इस पर अमल करना शुरू किया, यानी फजर से पहले उठकर अल्लाह से दुआ करता था, आखिर उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई। तो ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मुसलमानों, तहज्जुद का एहतमाम करो, भले 2 रकात पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती है, भले ताखीर से कबूल हो लेकिन होती है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला तुम में से हर शख्स की फरियाद को सुनता, कबूल करता है, जब तक कि जल्दबाजी न करे। जल्दबाजी क्या है? कहता है मैंने दुआ की, खूब दुआ की, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दे रहा है। हालांकि हदीस में आता है अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, और 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर देगा, और वही देगा जो आपके हक़ में, हमारे हक़ में बेहतर होगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? या तो आपकी मांग पूरी होगी, या अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह उस दुआ की बदौलत टाल देता है, या अल्लाह ताला आखिरत में नेकियों का ज़ख़ीरा बना देगा। मरने के बाद आदमी उससे फ़ायदा उठाएगा और उसकी सख्त ज़रूरत होगी। इसलिए अल्लाह के बंदो, ज़रूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो, बल्कि कौन जानता? अल्लाह जानता है। इसलिए कसरत से दुआ करें, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे हक़ में जो बेहतर हो वही हमारे लिए मुंतखब फरमा। तो मोहतरम सामीन, फजर से पहले का जो वक्त है बहुत ही कीमती है। उस वक्त रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है, अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने का बेहतरीन मौका होता है। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फजर से पहले उठकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो इसकी लज्जत और खुशी दिन भर रहती है, यकीन मानिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से, खुसूसन नमाजियों से इल्तिमास करता हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, भले 2 रकात पढ़ो। और एक मशवरा है, इशा के बाद वित्र की नमाज़ ना पढ़ें,
बल्कि फजर से पहले पढ़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि वो कीमती वक्त आपको हासिल हो जाएगी। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी आ रही है, रातें लंबी हो रही हैं, नींद पूरी हो जा रही है, तो अब अल्लाह के सामने खड़ा होना ये आसान होता है। इसलिए फजर से पहले अल्लाह के सामने खड़े हों, दुआ करें, भले 2 ही रकात पढ़ें लेकिन पढ़ें। इसी तरह मोहतरम सामीन, नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो सुबह के वक्त से फ़ायदा उठाइए। सुबह का वक्त बहुत ही कीमती है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी लश्कर भेजते थे सुबह के वक्त भेजते थे। हज़रत सख्र गामिदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बड़े ताजिर हैं, बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी आदत क्या थी, जब भी अपनी तिजारत का काफिला भेजते थे सुबह के वक्त भेजते थे, खूब फ़ायदा होता था, खूब बरकत होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, उमर बिन खत्ताब कहते हैं, लोगों सुबह से फ़ायदा उठाओ क्योंकि इस वक्त बरकत होती है। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि नबी अलैहिस्सलाम फजर के बाद नहीं सोते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सुबह के वक्त रिज़्क़ तलब करना बरकत है क्योंकि उस वक्त फरिश्तों की दुआएं होती हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त कुरान की तिलावत करता है अल्लाह उसके दिल को रोशन कर देता है, मुनव्वर कर देता है और उसके पूरे दिन को मुबारक बना देता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि तुज्जार, ताजिर लोग, बिजनेसमैन लोग सुबह के वक्त अपनी तिजारत का काफिला भेजते थे, खूब फ़ायदा होता था, खूब बरकत होती थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये फजर के बाद से लेकर सूरज निकलने तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे और कहते थे कि ये तक़सीम का वक्त है, इसमें बरकत होती है। अलगज़ कहने का मतलब ये सामने किराम कि हमारे जो असलाफ थे वो फजर के बाद नहीं सोते थे और क्या कहते थे कि फजर के बाद सोने से बरकत ख़त्म हो जाती है। इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फजर के बाद सोने से अक़ल में, सूझबूझ में, रिस्क में कमी आती है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है खुसूसन उन लोगों के लिए जो कुछ हासिल करना चाहते, कुछ सीखना चाहते हैं, ख़ास कर पढ़ने वालों के लिए, कि सुबह के वक्त लिखो, पढ़ो, याद करो क्योंकि उस वक्त याद ज़्यादा होती है, बरकत का नुज़ूल होता है। इसी तरह मोहतरम सामीन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फजर के बाद अपने घर वालों को जगाते थे और क्या कहते थे, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ऐसे वक्त में सोते हैं जिस वक्त रोज़ियाँ तक़सीम हो रही हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुबह का वक्त है, बरकत का वक्त है, जो इसे सोने में ज़ाय कर दे वो पूरे दिन की बरकत से महरूम हो जाता है। सामने किराम, तो हमारे जो असलाफ थे जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म था, जो समझदार थे, वो फजर के बाद फ़ायदा उठाते थे। कोई इल्म हासिल करता था, कोई कुरान पढ़ता था, कोई ज़िक्र अस्कार करता था, कोई दुआ करता था, कोई तिजारत करता था, कोई बड़े बड़े काम करता था, लेकिन खाली नहीं बैठते थे, सोते नहीं थे। क्यों? वो जानते थे कि ये बरकत का वक्त है और दुआ किसने की है? हमारे प्यारे नबी ने की है, तो बरकत ज़रूर होगी। और सामने किराम, आप ये भी जानें, हकीकत ये है कि आज गैर मुस्लिमीन हमारे नबी की तालीम पर, हमारे नबी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब अजान पर पाबंदी की बात हो रही थी तो कितने गैर मुस्लिमों ने इसकी मुखालफत की, कहा कि नहीं, अजान होनी चाहिए, अजान सुनकर हम उठते हैं और अपना कारोबार करते हैं। हमारे नेपाल में एक पहाड़ी इलाका है, शहर है, मैं वहाँ इमाम था, मैंने खुद देखा वहाँ बच्चों को, बच्चियों को फजर से पहले पढ़ने के लिए जा रहे थे, पढ़ाई के लिए जा रहे थे। फजर से पहले दुकानें खुल रही थी और मगरिब की बाद दुकानें बंद हो जाती हैं और वो खुशहाल थे। वजह क्या थी? वो नबी की तालीम पर, नबी की हिदायत पर अमल कर रहे थे। तो याद रखो मेरे भाइयों, जो भी नबी की सुन्नत पर, नबी की तालीम पर अमल करेगा, चाहे वो काफिर, मुशरिक कोई भी हो, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत देगा, वो खुशहाल होगा। और जो नबी की सुन्नत की मुखालफत करेगा, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, अल्लाह उससे ज़लील खार करेगा। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने कितने सौ साल तक हुकूमत की। उमरा बादशाह रातों में जागते थे, दिन में सोते थे, हत्ता कि इनका नाश्ता दोपहर के वक्त होता था और वहीं पर अंग्रेज सुबह सुबह उठ करके कारोबार करते थे। नतीजा क्या हुआ? नबी की सुन्नत की मुखालफत से अल्लाह ने हुकूमत, खुशहाली, सब कुछ छीन लिया। तो मेरे भाइयों, मुट्ठी में बांध लो, जो भी नबी की सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उसे तरक्की देगा।
चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। इसलिए नबी की तालीम से मोहब्बत कीजिए और तालीम पर अमल कीजिए। इसी तरह मोहतरम सामीन, अगर आप चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत हासिल हो, नबी की दुआ हासिल हो, तो फिर नरमी कीजिए, आसानी कीजिए। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो ख़रीदता है, बेचता है, तकाजा करता है, सब में आसानी करता है, नरमी करता है। गोया कि नरमी करने वालों के हक़ में नबी की दुआ है, उसकी ज़िंदगी में बरकत होगी इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खादिम को, गुलाम को जब बाज़ार भेजते थे तो नसीहत करते थे कि लेन देन में आसानी करना, नरमी करना, ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में किसी को तकलीफ़ मत देना, किसी से मत झगड़ना। कोई कमी करे माल में या कीमत में कमी कराए तो खुशी खुशी उसे कबूल कर लेना। और सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं, उस ख़रीदार से कहते थे जिसके पास मुकम्मल कीमत नहीं होती थी, जाओ बाद में देना, और अगर बाद में देने की क़ुव्वत नहीं है तो मेरी तरफ से माफ़ी है। और हदीस में ये भी आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुमसे पहले एक शख्स था जिसके पास कोई नेकी नहीं थी, कोई नेकी नहीं थी। एक नेकी थी कि लोगों को कर्जा दिया करता था, जो मालदार होते थे उन्हें मोहलत देता था, जो तंगदस्त थे, गरीब थे, परेशान हाल थे, उन्हें माफ़ कर देता था। अल्लाह ताला ने भी इसके इस अमल की कदर की उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं नरमी के ताल्लुक़ से कि ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में किसी चीज़ का ज़िम्मेदार बने और वो गलत फ़ायदा उठाए, लोगों को मशक्क़त में डाले, लोगों को तकलीफ़ में डाले, ऐ अल्लाह तो उसकी ज़िंदगी में मुसीबत डाल दे, तो उसके साथ भी सख्ती फरमा। और ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में ज़िम्मेदार बने किसी चीज़ का और उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों के साथ नरमी करे, आसानी करे, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानी फरमा। मालूम क्या हुआ, ओहदा मिलने के बाद अगर हम लोगों को मशक्क़त में डालते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी मशक्क़त में डाल देगा। और अगर ओहदा मिलने के बाद हम नरमी करते हैं, आसानी करते हैं, लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी। क्यों? हमारे प्यारे नबी की दुआ है। मोहतरम हाज़रीन, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो दीन के ताल्लुक़ से जो भी बातें मालूम हैं दूसरों तक पहुँचाएँ। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है, उसे याद करता है और दूसरों तक पहुँचाता है। तो आप तबलीग ज़रूर कीजिए, नसीहत ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, अच्छे अंदाज से। जैसे हमारे नबी का तरीक़ा था। हमारे नबी क्या करते थे, पहले जो खूबियाँ इंसान के अंदर होती थी उसको बयान करते थे, उसके बाद नसीहत करते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। आपने क्या फरमाया, ऐ उमर, यकीनन आप मजबूत आदमी हैं, कवी आदमी हैं, खाने काबा के पास एक दूसरे को धक्का मत दिया करो। तो देखें, नसीहत करने से पहले आपने तारीफ़ की, तो तारीफ़ करने से होता क्या है, आदमी खुश हो जाता है, उसके बाद नसीहत करेंगे तो आदमी को तकलीफ़ नहीं होगी और खुशी खुशी कबूल कर लेगा। दूसरा वाक़या है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से कहा, कसम अल्लाह की मुझे आपसे मोहब्बत है, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये पढ़ना मत भूलना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। गौर कीजिए, नसीहत करने से पहले आप मोहब्बत के इजहार कर रहे हैं, आप तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बाद नसीहत कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब आपने नसीहत करना चाहिए तो आपने उनकी खूबियों को बयान किया कि अब्दुल्ला अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, काश वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के खलीफा थे, बादशाह थे, जब कोई ऐसा काम देखते जो बुरा होता था, नापसंद होता था और उनको गुमान होता कि अभी टोकूंगा, नसीहत करूंगा तो ये आदमी बुरा मान जाएगा, तो उस वक्त खामोश हो जाते थे, लेकिन भूलते नहीं थे। जब हदिया और तहाइफ इनके पास आता था, वक्त के बादशाह थे, तो हदिया और तोहफा देते वक्त वो बात ज़रूर रखते थे, नसीहत ज़रूर करते थे, ताकि हदिया पाने की खुशी में उसे तकलीफ़ ना हो, नसीहत पर अमल करे। तो मोहतरम सामीन, इन तमाम वाक़यात में मैसेज क्या पैगाम किया है कि जब हम नसीहत करें तो प्यार से, मोहब्बत से, जो खूबी है उसको पहले बयान करें। मिसाल के तौर पर कितने ऐसे नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज में हाजिर रहते हैं, पहले सब में हाजिर रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका कपड़ा टखनों के नीचे होता है जो कि हराम है, सरासर नबी की मुखालिफत है। तो ऐसे लोगों को नसीहत कैसे करेंगे? तो जो खूबियाँ हम बयान करें कि यकीनन आपके अंदर एक मोमिन की खूबी है। वो खूबी क्या है कि आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं,
पहले सब में हाजिर होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबको तौफीक नहीं देता है, और ये आपसे अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है। तो ये जो कपड़ा टखनों के नीचे है ये हराम है, ये हमारे प्यारे नबी की तालीम के ख़िलाफ़ है। जब इस तरह बातें करेंगे, मोहब्बत के इजहार करेंगे प्यार से, मोहब्बत से, तो इंशाअल्लाह इंसान को तकलीफ़ नहीं होगी और उस पर अमल करेगा। इसी तरह सामने किराम, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला अगर तौफीक दे हज और उम्रे की, तो हज और उम्रा करते वक्त अपने सर के बाल को छिलाएं, मुड़वाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ की है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम लिल मुहल्लिक़ीना, कि अल्लाह सर मुड़वाने वालों पर रहम फरमा, उन्हें बख्श दे। 3 बार दुआ की है, और 1 बार दुआ की है उन लोगों के हक़ में जो बाल छोटा करवाते हैं। तो जब भी अल्लाह तौफीक दे हज उम्रे की, तो ज़रूर अपने सर के बाल को छिलाएं, ताकि नबी की दुआ हासिल हो और हम सब की ज़िंदगी में बरकत हो। अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि ऐ नबी लोगों के माल से सदका लीजिए, ज़कात लीजिए, उन्हें पाक कीजिए, और हाँ उनके हक़ में दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ लोगों के लिए सुकून का ज़रिया है। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए ज़कात का माल लेकर, तो आपने उनके हक़ में दुआ की कि अल्लाह अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा के अहल अयाल पर रहम व करम फरमा। इसी तरह मोहतरम सामीन, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, तो असर की नमाज में फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 4 रकात नफ़िल नमाज पढ़ें। असर में फ़र्ज़ से पहले 4 रकात नफ़िल नमाज पढ़ें। नबी ने उनके हक़ में दुआ की है, आपने फरमाया रहिमल्लाहु इम्रअन सल्लल असर अर्बअन, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो असर के वक्त फ़र्ज़ से पहले 4 रकात नफ़िल नमाज पढ़ता है। नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो सब बंदे के वक्त, जब सब बंदे के लिए खड़े होते हैं तो मिलजुल कर खड़े हों, एक दूसरे से मिलजुल कर खड़े हों, सबको पूरा करें, मुकम्मल करें, मिलकर रहें। आपने ऐसे लोगों के हक़ में दुआ की है, आपने फरमाया है कि जो सबको जोड़ता है अल्लाह उससे जोड़े, और जो सबको तोड़ता है अल्लाह उससे तोड़े। इस हदीस को 3 मुहद्दिसीन ने बयान किया है, और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। मोहतरम सामीन, नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो नबी का जो पैगाम था, नबी की जो दावत थी, उसको कबूल करें। अल्लाह रज़्क़ ने फरमाया, नबी जो दें उसे ले लो, जिससे मना करें उससे दूर हो जाओ। ऐ अल्लाह के बंदो, याद रखो, जब तक हम नबी के तरीक़े पर अमल नहीं करेंगे कामयाबी नहीं हो सकती है। हमारी नीयत भले कितनी अच्छी हो, अमल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमारा अमल नबी के तरीक़े पर नहीं है तो याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, मैदान महशर में हम धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी नहीं पी सकेंगे। और ये बात कौन कह रहे हैं? हम सब के प्यारे नबी कह रहे हैं। सहीहैन की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी मुलाकात ऐ उम्मत के लोगों, मेरी मुलाकात तुमसे हौज़े कौसर पर होगी। मैं वहाँ हूँगा, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे, मैं उन्हें पहचान लूँगा, वो मुझे पहचान लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुझसे दूर कर दिया जाएगा। मैं फरिश्तों से कहूँगा फ़इन्नहुम मिन्नी, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपकी वफ़ात के बाद दीन के अंदर नई नई चीज़ें ईजाद की थी। तो जब आप ये सुनेंगे तो कहेंगे सहकन सहकन लिमन गय्यर आबादी, दूरी हो ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया था। इससे मालूम क्या हमारे भाइयों, थोड़ा अमल करो लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने नबी के तरीक़े पर अमल करो, यही आपको नजात दिलाएगी। बहुत ज़्यादा अमल हो लेकिन अगर नबी के तरीक़े पर नहीं है, सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यही दरख्वास्त है, कुरान और हदीस को सीखो, पढ़ो, समझो और कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करने की कोशिश करो। आखिरी बात सामने कराम वो ये है कि अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे नबी के हक़ में दरूदो सलाम भेजें। जितना दरूदो सलाम भेजेंगे उतना ही नबी की दुआ हमें हासिल होगी। सही रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स मुझ पर दरूदो सलाम भेजता है अल्लाह ताला मेरी रूह वापस कर देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ, यानी मैं भी उसके हक़ में दुआ करता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप दरूद पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा दरूद सलाम भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा नबी की दुआ हासिल होगी, उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में खैर बरकत होगी और हम कामयाब हो सकते हैं। तो हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को नबी की दुआ हासिल करने की तौफीक अता फरमा।
الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو چاہے وہ وفات پا چکے ہوں یا زندہ ہوں، اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جو بھی مصیبتیں آئی ہیں یا آ رہی ہیں، اللہ تو اس کا بہترین بدل دے دنیا اور آخرت میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔